Hello friends. After completion of 6 parts of units and dimensions, you know that very well. We have covered few most time points. Dimensional analysis. If you consider dimensional analysis, then we discuss derivation of equation. That means to derive the equation of the given physical quantity, to check the dimensional consistency. And in last part 6, we discuss dimensional analysis for trigonometric function and exponential function. So friends, in the last week we conducted a paper, JEE NEET paper of 10 questions, and I know that very well. These 10 questions are very important questions. So today we would like to think about, in this lecture we would like to think about the solution of this paper, units and dimensions paper 1 solution based on JEE NEET. So don't forget, only paper or question paper, to give only question paper or 2 we can say the attend question paper, it is not, we can say that the perfect method. कोई भी JEE नीट को डेवलप करने के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स पेपर देते हैं या काफ़ी इंस्टीट्यूट पेपर लेती है, मगर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पेपर का सॉल्यूशन। अगर आपने जिस टाइम पे पेपर लिखा था तब जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किए थे, क्या वही कंसेप्चुअल पॉइंट सही में एप्लीकेशन में हो रहे हैं, या आप जो सोच रहे हो उससे कुछ अलग ही पॉइंट आ रहा है, वो सॉल्यूशन थ्रू ही पता चल सकता है। इसीलिए कोई भी JEE नीट का पेपर आप सोल्व करो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन है वो इम्पोर्टेंट होता है। इसी के कारण आज अपन लोग इस लेक्चर में अपन लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस पार्ट 6 के बाद पार्ट 7 में बाद में जाएंगे। पहले ये पेपर को सोल्व करते हैं, क्योंकि इसके 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में कहाँ ना कहाँ छाए हुए हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन इधर देखना है, एनालिसिस करना है, और होमवर्क में यही 10 क्वेश्चन है वो हो जाने चाहिए और अगले दिन तक सबमिट करवाने का है। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. यू कैन सी विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 1. In question number 1, frequency f, velocity v, and density, you can see that d, are considered fundamental physical quantities, then obtain the dimensional formula. These 3 quantities we have to consider fundamental quantities. then obtain, क्वेश्चन क्या है, then obtain dimensional formula for momentum. Okay, those students who have no idea about question paper, those students who are not, we can say that, associated with this group, they can take the reference of this question paper by considering website www.physicsbygopalsir.com. On this website you can take the reference of this question paper. This question paper is uploaded already on this website www.physicsbygopalsir.com. Okay friends, so this is the question number 1. You can see in question number 1 3 quantities, frequency, velocity and density are considered fundamental quantities. ऐसे क्वेश्चन हमने सोल्व किए तो अपने को मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है। तो अपने यहाँ से 2 रास्ते प्यार के, यानी कि 2 अलग अलग मेथोडोलॉजी, नंबर 1 शॉर्टकट मेथड एंड नंबर 2 बेसिक मेथड। 1 2 3 4 चारों मिलके साथ चले तो कर दे चमत्कार। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में और लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, सभी के ये बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डोंट फॉरगेट। ऐसे क्वेश्चन आए तो बिंदास पहले अपने दिमाग को शॉर्टकट के लिए दौड़ाना है, मगर ओनली फॉर 5 to 10 सेकंड्स। अगर आपको लगे कि मैं शॉर्टकट थ्रू ये न्यूमेरिकल सोल्व कर पाऊंगा तो ही वो मेथड में जाना है, वरना अपनी जो बेसिक मेथड है वो शुरू करनी है। मैं पहले इसको जिसे कह सकते शॉर्टकट से सोल्व करवाता हूँ, किस तरह हो सकता है, बाद में अपने पास बेसिक मेथड तो है ही। सो यू कैन सी हियर फ्रीक्वेंसी f, वेलोसिटी v, डेंसिटी d are fundamental quantities and your target to obtain dimensional formula for linear momentum. तो सबसे पहले दिमाग में linear momentum का फॉर्मूला फेंको,
P is equal to mv, यानी momentum is equal to mass into velocity. Already you can see that velocity, here are velocity. अब अपने को डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में जाना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? You know that very well. Density, that means mass upon volume. So here already mass. तो मैं जरा इसको देखो ऐसे लिखता हूँ, मोमेंटम P is equal to mass मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी अपॉन वॉल्यूम. कोई बोले सर इधर वॉल्यूम कहाँ से लाया? ये जादू किया. यू कैन सी दैट वॉल्यूम. What I have done here, multiplied by volume and divide by volume. Why? क्योंकि मुझे मास अपॉन वॉल्यूम चाहिए. कोई बोले क्यों मास अपॉन वॉल्यूम चाहिए? अरे डेंसिटी चाहिए. सो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी. चलो डेंसिटी दिखा, देखो डेंसिटी आ गया. वेलोसिटी ऑलरेडी विथ अस इनटू वॉल्यूम, यू कैन सी. तो डेंसिटी सिक्योर हो गया. डेंसिटी की जगह डी कर देते हैं. लोचे अपने फ्रीक्वेंसी के हैं क्योंकि वेलोसिटी भी फ्लिकर हो रहा है, डेंसिटी भी आपके सामने आ गए हैं. मगर फ्रीक्वेंसी लाना हो तो वॉल्यूम में से फ्रीक्वेंसी, तो वॉल्यूम का यूनिट चेक करो, इट इज मीटर क्यूब. जबकि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? इट इज सेकंड इनवर्स, यानी 1/सेकंड. तो इधर तो सेकंड डिनोमिनेटर में चाहिए. तो देखो वेलोसिटी का यूनिट चेक करो, इट इज मीटर पर सेकंड. तो यहां पे सेकंड आ रहा है. मगर प्रॉब्लम ये है कि अब मैं इसको जरा एक्स्ट्रा इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूं. देखो आपका ये सब दिमाग चलना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस तरह ना चले. डोंट वरी, अपना बेसिक मेथड शुरू कर दो. अब देखो इधर मैं सोल्व करवाता हूं अलग तरीके से, यानी कि थोड़ा लॉजिक अप्लाई करके. वेलोसिटी का यूनिट लिख रहा हूं मीटर पर सेकंड, बाजू में वॉल्यूम है तो उसका यूनिट होगा मीटर क्यूब. तो टोटल क्या हो जाएगा? m⁴/सेकंड. देखो प्रॉब्लम ये है कि हमें तो वेलोसिटी भी चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी चाहिए. वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड चाहिए और फ्रीक्वेंसी के लिए 1/सेकंड चाहिए. तो इधर देखो मीटर पर सेकंड में लाना हो तो मैं एक काम करने वाला हूं. देखो इधर पावर चेक करने का, मीटर का पावर 4 है तो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड. तो इधर भी मुझे पावर 4, जितना पावर मीटर का उतना ही पावर लाना हो तो क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय सेकंड क्यूब, मल्टीप्लाई बाय सेकंड क्यूब. देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्यों ये क्या हो जाएगा? जस्ट चेक इट. दिस इज सिंपली मीटर 4/सेकंड⁴ और ये हो जाएगा सेकंड क्यूब. तो अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, मीटर पर सेकंड पावर 4 s क्यूब. तो देखो ये मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी की जगह अपन लोग 4 पावर रखे तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी की जगह आ जाएगा पावर 4. देखो आ गया मीटर पर सेकंड पावर. अब अपन लोग को सेकंड क्यूब में, तो सेकंड क्यूब को अपन को तो 1/सेकंड चाहिए, नो प्रॉब्लम. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/s⁻³ सेकंड माइनस क्यूब. और ये पावर को भी ऐसा लिख सकते हैं अपन लोग 1/s⁻³ जस्ट सेकंड. तो 1/s क्या है? दिस इज योर फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी का भी अपन लोगों को आंसर मिल गया, मगर उसके ऊपर पावर लेना -3. तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंटम? इट इज d⁻⁴, इधर 1 है, वेलोसिटी v⁴, फ्रीक्वेंसी f⁻−3. ये आंसर आपका आना चाहिए. मगर दोस्तों मैंने बोला आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको नॉलेज के लिए दिया है. आप विदाउट टेंशन, कुछ भी टेंशन लिए बिना ये मेथोडोलॉजी को 1 2 3 करके सीधा ऐसा शुरू करो. ना पता चले तो क्या? linear momentum P is directly proportional to, you can see that f⁴ v⁴ simply b. There is a mistake, you can see. Okay, just a minute. Here sorry, we'll write here f is directly proportional to, sorry, p momentum P is directly proportional to f⁴, then velocity raised to b, then density raised to d⁻⁶. बस. तो अपन लोग तो जानते हैं 1 2 3 4 पहला पढ़ा पर. नाउ बाय राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, then compares the power of MLT and obtain the value of ABC. तो A की वैल्यू आएगी -3, D की वैल्यू आएगी 4,
और c की वैल्यू आएगी 1। चेक करना अपने आप घर पे, ये वापस सोल्व करने का है। ऐसी मेथोडोलॉजी में देखो जितना टाइम जाएगा उतना आप इधर आंसर ले आओगे, इसलिए शॉर्टकट के लिए और ये मेथड में जाने से पहले मैं ऑलवेज यही प्रेफर करता हूँ। और मैंने खुद बोला हुआ है आपको कि ये तो मैंने भी इतना सोचा उसके बाद हो गया, सपोज ना हो तो पेपर में अपन फंस जाए तो वेस्टिंग ऑफ टाइम, इसलिए सीधा यही शुरू कर दो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो ये आंसर आएगा। ये जो क्वेश्चन मैं अब आपके पे छोड़ रहा हूँ ये मेथड से, क्योंकि आज अपन लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले इसलिए। सो फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस, नाउ वी थिंक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन, if you think about we can say the question, then what happened? So question number 2, you can see in question number 2, if you check the paper, then what is the question number 2? Frequency of oscillation of mass m suspended from a spring having a constant k is given by, frequency दिया देखो ऐसे, f is equal to, और f is equal to c m raised to x into k raised to y. You can see mass m and spring have force constant. This is, you can see that force constant. अब ये हमने डिस्कस नहीं किया, इसलिए अपन लोग इसके मार्क्स इसके मुताबिक कंसीडर करेंगे। where c is the dimensionless quantity then the value of x and y, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डायमेंशनलेस है। What do you mean by first of all force constant? Force constant का मतलब होता है force per unit length. This is your force constant. We will discuss about this force constant in chapter number 14 and chapter number 6, work energy power. Don't worry. मगर force constant का फॉर्मूला याद रखना है, force acting per unit length of spring, it is called force constant. तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t minus 2, लेंथ का ऑलरेडी l1, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 l0 t minus 2। तो अपन लोग शुरू करें अब इसको सोल्व करना। अपन लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 मेथड ही होगी, मगर पहला पड़ाव ऑलरेडी दे दिया। नाउ बाय राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t minus 1 सेकंड इनवर्स। c का लिखने की जरूरत नहीं है, डायमेंशनल लेस। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हो, और अभी फोर्स कांस्टेंट का भी हमने डिराइव कर लिया, m0 l0 t minus 2y। अपन लोग एक कदम आगे बढ़े, इधर t raised to -1, इधर m raised to x, इधर m raised to y एंड t raised to -2y, इधर पावर 0 है तो हमने पावर दिया नहीं। ओके फ्रेंड्स, वन मोर स्टेप, सो हियर m and m, so x plus y and here t raised to -2y. So up to here any doubt? You can see by writing dimensional formula on both sides of the given equation. Now what's the next move? By comparing power. So what is the power of m here? x plus y. इधर तो पावर m का अपन लोग जानते 0 ही है, so x plus y is equal to 0. And what is the power of t? It is -2y, and here power of t -1, so y is equal to 1/2. So put here 1/2, so x plus 1/2 is equal to 0 for this equation, so x is equal to -1/2. So these are the two values. ये आपका टारगेट था, x -1/2 and y plus 1/2. You can see this is the answer 2D. So question number 2 का ऑप्शन है D. Very IMP, just analyze at least one time. Okay, now we think about one more question number, simply third. We can also remove it because we have idea about the methodology. अपन लोग अब पेपर 3 सोल्व कर रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन पेपर नंबर 1 JEE नीट के रिलेटेड है। अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर में जा रहे हैं थर्ड नंबर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 इफ यू थिंक अबाउट द डेटा, देखो फोर्स, वेलोसिटी and time are taken as fundamental units, then what's the dimensional formula for mass? ये क्वेश्चन मैंने इधर सोल्व करवाया हुआ है, फिर भी अपन लोग इसको जरा डिस्कस करते हैं। Here you can see that force,
वेलोसिटी एंड टाइम यानी एफ वी एंड टी आर कंसिडरेड फंडामेंटल यूनिट्स, then your target to obtain the dimensional formula for mass. तो फ्रेंड्स डोंट वरी, इसको शॉर्टकट मेथड से भी करते हैं। वो मेथड तो हम लोग जानते हैं, कौन सी मेथड, तो अपन लोग ये करेंगे m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f रेस टू a v रेस टू b एंड t रेस टू c। इसके बाद की कहानी आप खुद लिख सकते हो, क्या, बाय राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स, कंपेयर द पावर्स, ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ एबीसी। मगर इसका शॉर्टकट, क्योंकि ये फेमस है और आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही 3-4 क्वेश्चन फेमस है वो कर ही देने के, शॉर्टकट थ्रू याद रखने के। तो चलो देखो, फोर्स है तो अपन लोग तो जानते हैं फोर्स और मास का टाका भिड़ा हुआ है, ये मैंने सोल्व करवाया हुआ, फिर भी देखे फादर एफ इज इक्वल टू मदर माँ, ये आ गया। और फोर्स आ गया, देखो फोर्स आ गया, मास आ गया, मास आ गया। अब अपने को ये दो फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए, ये 4 क्वांटिटीज एक ही जगह रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जिसमें से फोर्स आ गया, मास आ गया, अब आया एक्सीलरेशन। मगर हमारा टारगेट एक्सीलरेशन नहीं है, वी वुड लाइक टू ऑब्टेन वेलोसिटी एंड टाइम। सो एक्सीलरेशन में से वेलोसिटी में जा सकते हैं, यस। सो अपन लोग लिखे फोर्स F इज इक्वल टू m, व्हाट इज द एक्सीलरेशन, इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, यू नो दैट वेरी वेल। तो देखो फोर्स आ गया, मास आ गया, वेलोसिटी आ गया, टाइम आ गया, अपने को चाहिए मास। सो मास शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, so F into T upon V you can see. So now what is the dimensional formula for mass? इधर मैंने आपको बताया था कि बी अलर्ट, ये चिकना केस है, we are dealing with a question in which force, velocity and time, we have to consider these 3 quantities as a fundamental quantities. ये तीनों क्वांटिटीज को फंडामेंटल कंसीडर करना है। और आप जानते हो फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला वही है, यानी फोर्स फंडामेंटल हो तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला 1, टाइम तो फंडामेंटल है t, वेलोसिटी फंडामेंटल हो तो उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला v1। तो ये v1 गुलाटी मार के ऊपर, तो f1 t1 v-1, ये इसका आंसर आता है। और ये जिसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर, अगर आप ये मेथड लोगे तो भी आंसर जिसे कह सकते हैं कि यही जाएगा, डोंट वरी। मगर ये शॉर्टकट थ्रू मैंने समझाया। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, आंसर ऑलरेडी डेली, यू कैन सी डेली। नाउ वी वुड लाइक टू फॉलो नंबर 1, फॉलो द क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्टकट से सोल्व करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लॉन्ग मेथड को आपको आती है, शॉर्टकट ये भी बहुत फेमस है, पूछे तो ये कर सकते हो। एनर्जी E, velocity V and time t are chosen as the fundamental quantities, then dimensional formula of surface tension, ये भी मैंने आपको शॉर्टकट से बताया है। फोर्स, सॉरी, एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम, एनर्जी E, velocity V, time t are considered fundamental quantities, then obtain the dimensional formula of surface tension। सरफेस टेंशन को आप जानते हो, सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यू कैन सी। ओके, फोर्स आप जानते हो, लेंथ, लेंथ यानी डिस्टेंस रिलेटेड। तो सबसे पहले अपन लोगों को एनर्जी चाहिए। एनर्जी का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले यानी कि लेक्चर में भी बताया हुआ है, यानी ये लेक्चर में बहुत पहले 2-3 लेक्चर में ये कंसेप्ट बताया था। एनर्जी दैट मींस वर्क डन। तो अपने को अब यहाँ पे वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला आपके दिमाग में है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स तो है, तो मैं अब क्या करता हूँ, सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। बेसिक फॉर्मूले को कोई छेड़खानी भी किए बिना लिख देता हूँ। नाउ मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट upon divide by displacement. Ready? Now force into displacement. What is the meaning of force into displacement? It is work done. तो ये वर्क डन आ गया। लेंथ यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, तो अपन लोग तो जिसे कह सकते हैं कि 2 बार लिख दे लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम ही हुआ, डोंट वरी। ओके, तो
वर्क डन यानी एनर्जी आ गई, देखो एनर्जी ऑलरेडी आ गई, यानी सरफेस टेंशन को हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब बचा वेलोसिटी, तो डोंट वरी, वेलोसिटी का यूनिट चेक करो, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इधर ऑलरेडी मीटर है, देखो लेंथ का मतलब यूनिट होता है मीटर, मगर इधर मीटर का स्क्वायर है, तो डोंट वरी, इधर मुझे डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर चाहिए, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है तो नीचे भी सेकंड स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, सेकंड स्क्वायर से डिवीजन कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, देखो मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर, तो अब वर्क डन की जगह एनर्जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह मैं ऐसा लिखूं, मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर इनटू यू कैन सी दैट सेकंड स्क्वायर। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी का होगा E1, ये मीटर पर सेकंड होगा, वेलोसिटी का 2 पावर और सेकंड का होता है टाइम, तो टाइम t स्क्वायर। तो फाइनल आंसर होगा E1 v माइनस 2t माइनस 2। तो ये आपका बन गया सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, बट बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अगर कोई बोले सर इसमें कुछ पता नहीं चलता है, क्या कर रहे हो, डोंट वरी, ये मैंने बताया, ये जो मेथोडोलॉजी है वो नेचुरल तेज तरार दिमाग चले तो ज अप्लाई करना है, और वो आप 2 से 3 या 5 सेकंड में तय कर लोगे। अगर आप 5, 7, 10 सेकंड में भी तय नहीं कर पाते हो तो लोचे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ना पता चले तो ये तो है क्या, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, सरफेस टेंशन एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E रेस टू A, V रेस टू B एंड T रेस टू C। अब क्या करेंगे, अपन लोग तो जानते हैं बाय राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, कंपेयर द पावर्स ऑफ MLT, ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ ABC, A की वैल्यू आएगी 1, B की वैल्यू आएगी -2, C की वैल्यू आएगी -2, लाइक दिस वन, और ये आंसर बनेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे आज शॉर्टकट्स जो होते हैं फेमस हो बहुत इजी, उसको उसी की तरह सोल्व करवाता हूँ। जहाँ पे आपको लगे कि ये शॉर्टकट से समझ में नहीं आता है तो डोंट वरी, ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला तो सिर्फ आप समझ पाओ इसलिए मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे ऐसी कोई दिलचस्पी या फोर्सफुली मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि प्लीज यही मेथड में मुझे आंसर चाहिए, नहीं। आप नेचुरल ट्राई करो, घर पे 15-20 मिनट अपने आप दिमाग चलाओ, सेट होता हो तो वेरी गुड है प्रैक्टिस सेशन के लिए। नीट और JEE जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 15-20 मिनट एक ज क्वेश्चन में पास करना सिंपल जिसे कह सकते हैं कि फुलिशनेस कहलाती है। इसलिए डोंट डू दिस वर्क, डायरेक्टली जो इजी वे है वो पकड़ लो और दौड़ने लगो, इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं कोई बोले तो ये सोल्व क्यों नहीं करवाते, ये इसलिए नहीं सोल्व करवाते क्योंकि अभी काफी सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो एक ना एक क्वेश्चन को मैंने थोड़ा अलग तरीके से करवाया ताकि नॉलेज बढ़े, ये तो आप जानते ही है, और जो जानते हो उसमें टाइम पास करने का कोई मतलब है नहीं। तो अपन लोग अब एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस किया, सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये जोरदार क्वेश्चन। इन डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, देखो ये है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी VC और V डिपेंड्स अपॉन फ्यू पॉइंट्स। तो डायरेक्ट इक्वेशन ही दिया, देखो V इज इक्वल टू ईटा रेस टू x, डरने की जरूरत नहीं है कोई से, रो रेस टू y एंड r रेस टू z। ये भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया हुआ है। वेयर ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, rho is the density and r is the radius, then obtain the values of x, y and z। बिंदास। अब देखो आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करोगे तब कोई बोले सर डेंसिटी को तो मैं जानता हूँ, रेडियस को भी मैं जानता हूँ, यानी मैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से डिराइव कर लूंगा, मगर एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो भी मैंने कितनी बार बोला आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन भी नीट में ही पूछा हुआ है, यानी कॉम्पिटिटिव में। तो आप कॉम्पिटिटिव में जो क्वेश्चन पूछा है वो सोल्व करोगे, वो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड 12th के बाद ये एग्जाम देने वाले हो, तो तब तक तो आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 10 में डील कर चुके होंगे, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो कोई बोले वो तो छोड़ो, अभी का क्या, अभी तो हम लोग कैसे सोल्व करें, तो अभी आपको ऐसे इक्वेशन है या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इक्वेशन याद रख लेने के,
फॉर एग्जाम्पल ये भी मैंने सोल्व करवाया हुआ है। फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ऐसा मैंने एक शॉर्टकट आपको दिया हुआ है जिसमें 6 पाई तो कांस्टेंट है, तो ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो अपन लोग इसके ऊपर से फाइंड कर सकते हैं, फोर्स अपॉन आर इंटू वी। तो देखो मैं आपकी जगह हो तो फोर्स का लिख दूं m1 L1 T माइनस 2 R यानी L1 हो जाएगा। यू कैन सी दैट L1 वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यानी T माइनस 1, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मीटर पर सेकंड। तो ये अलविदा दोस्तों। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? इट इज कॉल्ड ईटा। ये n है और ईटा है, n का ये जो पोर्शन है वो लंबा खींचने का, तो ग्रीक लेटर ईटा हो जाए। सो ज्यादातर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए और एफिशिएंसी के लिए यूज होता है। तो m1, अभी L1 ऊपर जाएगा तो -1 और t -1 ऊपर जाए तो -2, ये -1 बन जाएगा +1, तो t बनेगा -1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, जो अपन लोग इधर लिख देंगे m1 L-1 t-1। तो फ्रेंड्स अब इसको हटा देते हैं और अब अपन लोग शुरू करते हैं बेसिक जो मेथड। तो अपन लोग तो इसको जानते हैं, वी हैव आइडिया अबाउट दिस इक्वेशन। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट मूव? टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z, obviously first of all we have to think about dimensional formula on both sides. Start. What is the dimensional formula for velocity? It is m0 L1 t-1 meter per second is equal to coefficient of viscosity already with us m1 L-1 t-1 raised to x, a either. Density, what is the formula of density? Mass upon volume. तो mass का होगा m1 अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम का होगा L क्यूब मीटर क्यूब, बट माइनस y बिकॉज ऑफ अपॉन रेस्ट टू y, एंड रेडियस यानी ओनली मीटर L1 रेस्ट टू z। अब यहां से आपको कहानी पता है, ये सबसे पहले पावर दे दो m रेस्ट टू x, L रेस्ट टू माइनस x, t रेस्ट टू माइनस x, here m रेस्ट टू y, L रेस्ट टू माइनस 3y एंड L रेस्ट टू z। अब अपन लोग जानते m वाले बंदे को पकड़ो, इधर m का पावर x और y, so m रेस्ट टू x प्लस y, here L L L, so L रेस्ट टू माइनस x माइनस 3y एंड प्लस z, माइनस x माइनस 3y प्लस z, बचा सिर्फ एक t, so it is minus x। check it, this all points we have discussed here. Now after writing dimensional formula on both sides, what's the next move? Compare the powers of MLT, very IMP. So now we will compare the powers. What is the power of m here? X plus y, and here 0, so x plus y is equal to 0. What is the power of L? Minus x minus 3y plus z, and what is the power of L here? 1, so is equal to 1. Finally, what is the power of t? It is minus x, and what is the power of t? It is minus 1, so x पहले मिल गया 1। अब यहाँ से वीडियो पॉज करो और मुझे ये इक्वेशन सोल्व करके बताओ। तो y भी मिल जाएगा, चलो y is equal to minus x, so y is equal to x already 1, so y minus 1। तो अपने को z फाइंड करने का है, तो चलो x की वैल्यू आ जाती है 1, y माइनस 1। अब z फाइंड करो, तो x की जगह अपन लोग रख देते हैं 1, y की जगह माइनस 1, z प्लस 1। ओके, सो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3, z इज इक्वल टू 1, सो माइनस 1 प्लस 3, दैट मीन्स 2 प्लस z इज इक्वल टू 1, 2 प्लस z, सो z इज इक्वल टू 1 माइनस 2, सो z इज इक्वल टू simply minus 1। So what are the values of x, y, z? x1, y minus 1, z minus 1, and these are the, you can see that your targets। आपको x, y, z की वैल्यू पूछी है, so this is the most IMP question। You can see that question number 5 already we have discussed। Now friends, very IMP question number 6, so we'll move towards the next question number 6। देखो ये सभी पॉइंट में एक ज काम करना है, 1 2 3 4। जो स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है वो भी वीडियो लेक्चर्स अच्छी तरह नंबर
3, 4, 5 को एनालिसिस करें, बेहतरीन 3, 4, 5 और A to Z जिसे कह सकते हैं डिस्कस करने के बाद ये पेपर को एक बार और सोल्व करें, क्योंकि ये पेपर्स के सभी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में पूछे हुए हैं और बहुत ही लेटेस्ट वर्जन भी हमने डिस्कस किया हुआ है JEE 2019, JEE 2020। तो फ्रेंड्स नाउ वी थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व। ओके, चेक इफ प्लैंक्स कांस्टेंट h, speed of light c and Newton's gravitation constant g are chosen as fundamental quantities. You can see पहला पॉइंट आता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट डिनोटेड बाय h, then velocity of light, velocity of light c and gravitational constant of Newton, it is g। ये अच्छी तरह आप जानते हो, जो लोगों ने अगले लेक्चर्स देखे उसको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर कंसीडर्ड ए फंडामेंटल कांस्टेंट, देन ऑब्टेन द फार्मूला ऑफ लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला नहीं मगर इक्वेशन डिराइव करना है। चलो तो अपन लोग तो देखो ऐसी सिचुएशन में तो मैं भी शॉर्टकट में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब हटके प्रोसेस है, तो इससे अच्छा डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। L is directly proportional to h raised to a, c raised to b and g raised to c। ओके, तो length is directly proportional, तो अपन डायरेक्ट पहला इक्वेशन आ गया। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट मूव? बाय राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला। चलो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला होगा m0 l1 t0 इज इक्वल टू, अब इधर प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका मैंने आपको बताया ये यूनिट तो याद रखना है। दुनिया में दो ही क्वांटिटीज है जिसका यूनिट जूल सेकंड है, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। तो जूल सेकंड, थोड़ा दिमाग चलाने का, जूल इनटू सेकंड, जूल इनटू सेकंड। तो जूल रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को और सेकंड रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 l2 t-1, देखो क्योंकि -2 + 1 t-1, तो जूल सेकंड के ऊपर से हमने प्लैंक्स कांस्टेंट पावर है। अब आता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड l1 t-1 पावर b। नाउ यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है f g m1 m2 अपॉन r², इसके ऊपर से आप डिराइव कर सकते हो। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने देखा हुआ है m1 l-3 t2, ऐसा इक्वेशन हमने डिराइव किया हुआ है m1 m-1, देयर इज मिस्टेक, m-1 l+3 एंड t-2। तो ये इक्वेशन मैं डायरेक्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर से डिराइव करने का टाइम बचे इसलिए, एंड पावर आएगा c, यू कैन सी। सो नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट मूव? अपन लोग पावर देंगे m⁻⁴ l⁻²a t⁻⁻a l⁻b t⁻⁻b m⁻c l⁻3c l⁻⁻2c, sorry t⁻⁻2c। Here m0 l1 t0. Now m, so what is the final answer? a minus c. Here l a जोरदार, so 2a plus b plus 3c. Now t⁻⁻a t⁻⁻b and t⁻⁻2c। ये भी क्वेश्चन हमने ऐसा सोल्व किया हुआ है। Now what's the next move? After writing dimensional formula, now what's the next move? It is comparison of powers. So what is the comparison of power? Power of m, a minus c. So I can write a minus c is equal to 0. इधर l का पावर है 2a plus b plus 3c, तो इधर l का पावर है 1 और इधर t का पावर है -2c is equal to t का पावर 0। अब इसको सोल्व करना भी मैंने आपको सिखाया है, किस तरह सोल्व करना है। देखो इधर ये इक्वेशन में a b c, तो ये दोनों में कुछ टाका भिड़ सकता है। अब देखो दोनों इक्वेशन में a का कोफिशिएंट चेक करो, इधर 2 है, इधर a का कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट पता चलता है ना 3a, तो ये 3 कोफिशिएंट है। b का कोफिशिएंट इधर चेक करो 1, इधर भी b का कोफिशिएंट 1, जबकि इधर c का कोफिशिएंट 3 और इधर c का कोफिशिएंट -2, तो इधर टाका भिड़ सकता है। कोई बोले कैसे?
चेक करो बी का कोफिशिएंट और बी का कोफिशिएंट सेम है, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों इक्वेशन का एडिशन ले लेता हूँ। देखो, सो 2a प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, उसके एग्जैक्ट नीचे मैं लिख देता हूँ माइनस a माइनस b माइनस 2c 0। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चले एडिशन, काफी बार तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो इधर साइन देखने की, b की साइन पॉजिटिव है, इधर b का साइन नेगेटिव है, तो इक्वल साइन हो तो सब्ट्रैक्शन सोचने का, ऑपोजिट साइन हो तो सीधा एडिशन स्टार्ट। 2a माइनस a, इधर b माइनस b 0, 3c माइनस 2cc, तो आंसर आएगा a प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वो इधर कहानी है, देखो ये a माइनस सी, इसके नीचे अपन लोग अब रख देते हैं a माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों का एडिशन ले लो तो सी सी कैंसर, a प्लस a 2a 0, तो a मिल गया 0। चलो, तो पहला पड़ा पार्ट, इसमें एक ही वैल्यू है, वो जिसे कह सकते हैं कि हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। आई थिंक 2a प्लस देयर इज समथिंग गोस टू रॉन्ग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ठीक है, चलो एक कदम आगे बढ़ते हैं। एक की वैल्यू, हाँ देयर यू आर, देयर इज 1, यू कैन सी दैट 1, सो 1 प्लस 0 1, तो इधर आएगा 1, a प्लस सी इधर 1, तो a की वैल्यू आएगी 1। लोचे हो गए थे। ओके, तो ये देखो ये चिकने कैसे से, इसको जरा संभालना। तो ये मिल गया 1। अब अपने को फाइंड करना है c, तो c तो बहुत इजीली मिल जाएगा क्योंकि a माइनस सी इज इक्वल टू 0, इन शॉर्ट a इज इक्वल टू c, सो c आल्सो 1/2। अब फाइंड करना है b, तो अपन लोग इसको उठाते हैं और ये इक्वेशन जो इक्वेशन अप्लाई करना हो करे, तो सपोज a उठाता हूं मैं, 2a, a कितना है 1/2 प्लस b 1/2, सॉरी b आपका टारगेट है, प्लस 3, c क्या है, c है 1/2 इज इक्वल टू 1, तो 2 2 कैंसिल, तो 1 प्लस b 3/2 इज इक्वल टू 1, यू कैन सी 1 1 भी कैंसिल हो जाए, सो b प्लस 3/2 0, सो b इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो अपने लोग तीनों तीन वैल्यूज आ गए, ये तीन वैल्यू सब इसमें रखते हैं, अपना बेसिक इक्वेशन है उसमें। तो स्टार्ट, l इज इक्वल टू h रेस टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a ऑलरेडी 1/2, तो h रेस टू 1/2, c रेस टू b also 1/2, sorry b already minus 3/2, there is a mistake, and g raised to c already 1/2, so g raised to 1/2। तो देखो जिसके ऊपर 1/2 पावर है उसको अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/2, और जिसके ऊपर नेगेटिव पावर है उसको अपन लोग भेज देते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का c √hg अपॉन c रेज़ टू 3/2। दिस इज द मार्वेलस इक्वेशन और क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ऑलरेडी आप देखो पेपर में है, तो इसको खास सोल्व करो एक बार और। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 भी बेस्ट क्वेश्चन है, डोंट वरी फ्रेंड्स। ये सभी क्वेश्चंस अपने आप सोल्व हो जाने चाहिए। आज ये 10 क्वेश्चन है, मोस्ट टाइमली फ्यूचर में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में कॉम्पिटिटिव लेवल पे दिखेगा या रिफ्लेक्ट होगा, तो इसको जरा संभालो। Now we'll think about next point, question number we can say that 7. 7 number देखो, energy, momentum and force were to be chosen as a fundamental units, then what would be the dimension of mass? ये भी मस्त क्वेश्चन, तो इसको जरा सोल्व करते हैं। Once again, energy E, question number 7, then momentum P and force F are considered fundamental units, then obtain the dimension of mass. These three are fundamental, then what is the dimensional formula for mass? तो अपन लोग तो बेसिक मेथड जानते थे, ये पहले फेंकेंगे, m is directly proportional to e raised to a
मोमेंटम रेस टू बी एंड फोर्स रेस टू सी। फिर यहाँ से तो आप जर्नी जानते हो, बाय राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, कंपेयर द पावर्स, obtain the equations, solve the equations and obtain the values of ABC। तो ये मैं यहाँ से आपके वाले छोड़ रहा हूँ, मगर मैं यही क्वेश्चन अब सोल्व करवाता हूँ शॉर्टकट, जो अपन लोग शॉर्टकट के सोल्व करें तो कैसे है। तो देखो एनर्जी और मोमेंटम का टाका भिड़ा हुआ है। कोई बोले हमने तो आज तक नहीं देखा, तो आज तक नहीं देखा इसलिए अपन लोग इधर बता रहे। देखो एनर्जी, कोई भी एनर्जी अपन लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखता हूँ 1/mv²। इसको अब जो डिस्कस कर रहा हूँ उसको भी जाना, फ्यूचर में काम में आने वाला है, डोंट वरी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, यू कैन कंसीडर काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, मगर हमें तो मोमेंटम में जाना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? इट इज mv। तो देखो इधर mv दिख रहा है, तो मैं ऐसा कुछ करूं, E इज इक्वल टू 1/2, चेक करते जाना, m²v²/m। क्या किया मैंने, इधर m को, इस टर्म को m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया, तो m इंटू m, m² डिवाइड बाई m। कोई बोले ये आप रट्टे मार के आते इसलिए आपको पता चले, हमें कैसे पता चले? आपको कैसे पता चले? तो इधर mv है, देखो मुझे मोमेंटम में जाना है, तो मोमेंटम में जाने के लिए जो पावर है उतना ही पावर m का दे दिया, तो उसके लिए मैंने m से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। अब देखो मैं ऐसा लिखूं 1/2m, और ये जो पोर्शन है उसको अपन लोग ऐसा लिखे तो किसी को प्रॉब्लम? तो अब तो आप जानते हो E इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, p²/2m। फ्यूचर में आप इक्वेशन के साथ बड़े पैमाने पे डील करने वाले हो, धूम मचाने वाला है। तो ये बन गया एनर्जी E, मोमेंटम P एंड मास m। तो मास, और अपन लोग तो जानते हैं इसमें 1/2, इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो मास को सब्जेक्ट फॉर्म में लाओ तो क्या होगा, p²/E। वापस बोलता हूँ, ये 1/2 का कोई रोल डायमेंशनल एनालिसिस में नहीं है। अब यहाँ से अपन लोग डायमेंशनल एनालिसिस में जाते हैं, तो m का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिखूं तो ऐसा होगा, पहले E को ऊपर ले जाए तो क्या हो जाए, e⁻⁻1/2 p2। कोई बोले एनर्जी आ गया, मोमेंटम आ गया, फोर्स तो है ही नहीं, अरे है ही नहीं, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा 0, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये देखो चुटकियों में आंसर आ जाता है, मगर हर बार ऐसा सेटिंग होना और दिमाग चलना मुनासिब नहीं है या जरूरी नहीं है, डोंट वरी। तो आप ये मेथड भी देख लो। आज से ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का याद रखो, काइनेटिक एनर्जी p²/2m। काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले 1/mv² एंड p²/2m। दिस फॉर्मूला ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, व्हाइल दिस वन इज इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम। तो दोस्तों ये भी इक्वेशन, और आप ये मेथड से सोल्व करोगे तो आपका आंसर a-1 b-2 और डेफिनेटली सी का आंसर 0 जाएगा, चेक करना कंफर्म। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज इट, वेरी IMP। ओके, नाउ वी वुड लाइक टू सोल्व नंबर 8 नंबर भी जिसे कह सकते बेस्ट। सभी क्वेश्चन बेस्ट ही है। ये 10 क्वेश्चन जिसने सोल्व कर दिए परफेक्ट, उसको डायमेंशनल एनालिसिस का ये डिपार्टमेंट है वो मास्टर कहलाए, डैम श्योर। इसीलिए होमवर्क में ये 10 क्वेश्चन एक बार सोल्व कर देने के हैं, मोस्ट IMP। और दूसरी बात मैंने बताई, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पेपर लिखना और लिख के छोड़ के मार्क्स देखना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो JEE नीट का पेपर लिखने का जो फंडा है उसमें 2-3 थीम्स। नंबर 1, आप में से कोई 2 या 3 स्टूडेंट्स का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। कोई एक स्टूडेंट है, वाई स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने 10 क्वेश्चन सोल्व करने में सिंपली जिसे कह सकते लॉजिक पावर अप्लाई किया, फंडामेंटल कंसेप्ट अप्लाई किया। 10 क्वेश्चन में से उसके 6 क्वेश्चन सही है, 4 रॉन्ग है, क्योंकि उसने जो लॉजिक अप्लाई किया उसमें इधर उधर हो गया। तो उसके 10 क्वेश्चन में से 6 सही होने के कारण मार्क आए उसके 6 4 24। अपन नेगेटिव अभी कंसीडर नहीं करते। और जो वाई बंदा है उसने 10 क्वेश्चन सोल्व करने में सिर्फ 2 में ही लॉजिक अप्लाई किया, बाकी के 8 में उसने गेसिंग टेक्निक अप्लाई किया। गेसिंग टेक्निक यानी ये आंसर आएगा ये बी कर देता हूँ, गेसिंग टेक्निक गेस करके अप्लाई किया है। तो ऐसी सिचुएशन में उसके रट्टे मारने के फंडे या गेसिंग टेक्निक अप्लाई करने से फंडे से 5 क्वेश्चन सही हो गए, तो उसके मार्क्स और आपके मार्क्स सेम आए, मतलब, या कभी उसके सही ज्यादा हो गए तो उसके मार्क्स ज्यादा आए, तो उसके ऊपर से ये कंसीडर मत करो कि वो बंदा आगे है।
क्योंकि गेसिंग टेक्निक या रैंडमली टिक मार्क का वजूद लॉजिक के साथ जुड़ा नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ। और हर बार गेसिंग टेक्निक काम ना आए, आप 10 में से 8 क्वेश्चंस अपने दम पे सोल्व करते हो, 2-3 क्वेश्चन है उसको छोड़ो मत, उसमें आप सिंपल जिसे कह सकते रिस्क लो। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, यानी 7 4 जा 28। अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन है उसमें आपको रिस्क लेना है। अगर आपने रिस्क लिया नेगेटिव मार्किंग और तीनों 3 रॉन्ग हो जाएगा तो आपके मार्क्स कितने हुए, 28 में से 25, 3 नेगेटिव मार्किंग के कट गए। मगर आपने रिस्क लिया 3, उसमें से अगर एक सही हो गया और 2 रॉन्ग हो गए तो क्या हुआ, एक सही के 4 मिले, 2 रॉन्ग के -2 हुए, अल्टीमेटली 4 में से 2 यानी 2 मार्क का तो और फायदा हुआ। मतलब आपका स्कोर जो 28 था वो बन गया अब 30। तो फ्रेंड्स लॉजिकली आगे बढ़ना है, लॉजिक अप्लाई करके ट्राई करो। गेसिंग टेक्निक वाले 100 में से 1-2 लोग होते हैं जिसका दिन होता है वो सितारा चमकता होता है तो आ जाता है, इसलिए सब क्वेश्चंस को सोल्व करना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारा आज का लेक्चर है सॉल्यूशन बेस्ड। तो ये 10 क्वेश्चन सोल्व करना है। 8 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन, वी कैन से दैट कॉम्पिटिटिव। स्पीड ऑफ ग्रेविटी वेव्स, देखो स्पीड यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेस टू अल्फा, rho raised to beta and g raised to gamma. Okay, gamma. Lambda is the wavelength, rho is the density and g that means gravitational acceleration. पेपर में सब दिया ही है। Then what is the value or relationship between alpha, beta, gamma? तो शुरू करते सबसे पहले by writing dimensional formula। तो इधर बन जाएगा m0 l1 t-1। अब आता है वेव लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर यानी L1, उसका पावर आएगा अल्फा। चलो डेंसिटी, दिमाग में आंसर दो, डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का m1 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। जो लोग डायरेक्ट सीरियल देखेंगे, आप बहुत कॉमन सी बात है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा लेक्चर एनालिसिस करते हैं फिर बोलते कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं जाएगा। आप सीरियल देखते हो, बीच में देखोगे आपको भी पता नहीं चलेगा कौन बंदा क्या कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है। तो आप पहले के लेक्चर्स देखो अच्छी तरह और बाद में इधर आओगे तो आपको सब पता चलेगा। मीटर क्यूब दैट मींस वॉल्यूम मीटर क्यूब, सो एल क्यूब बट डिनोमिनेटर में है सो माइनस क्यूब, पावर आएगा बीटा। एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो मीटर L1 सेकंड स्क्वायर -2, पावर आएगा c, यू कैन सी। रेडी, सॉरी c की जगह इधर अपन लोग को लेना है गामा, ये रहा गामा। रेडी, अब तो हम भली भांति जानते l रेस टू अल्फा, m रेस टू बीटा, l रेस टू -3 बीटा, l रेस टू गामा, t रेस टू -2 गामा। चलो पहले l वाले पकड़ लेते, l वाले। कोई बोले सर m है, तो m डोंट वरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, m रेस टू बीटा। अब l वाले l, सो l रेस टू अल्फा -3 बीटा प्लस गामा, और अब t रेस टू एक ज बचा -2 गामा। दिस इज योर, वी कैन से दैट सेकंड पढ़ाओ। थर्ड पोर्शन में क्या करना है, बाय कंपैरिजन ऑफ पावर्स ऑब्टेन द इक्वेशंस। चलो m का पावर है बीटा, जबकि इधर m का पावर है 0, तो बीटा 0। अब l का पावर क्या, व्हाट इज द पावर ऑफ l, सो अल्फा -3 बीटा plus gamma is equal to 1, and what is the power of t here, -2 gamma is equal to -1। तो बीटा तो सीधा आपके हाथों में 0। अब देखो इस गामा भी आपके हाथों में, गामा इज इक्वल टू 1/2। अब गामा की वैल्यू इधर रखते हैं तो 3, बीटा तो 0 यानी ये टर्म तो भूल जाते हैं। गामा है 1/2, तो अल्फा, अब ये 1/2 इस साइड जाए तो 1 - 1/2। मैंने कितनी बार बोला है, एक पूरा एप्पल हो उसमें से आधा एप्पल खा जाओ तो बचेगा क्या, ऑब्वियसली हाफ एप्पल। तो रिलेशनशिप पूछा है तो देखो अल्फा गामा सेम है तो आंसर ये बनेगा अल्फा इज इक्वल टू गामा, बट अल्फा एंड गामा इज नॉट इक्वल टू बीटा। क्यों, क्योंकि बीटा की वैल्यू 1/2 नहीं है। अगर इधर भी 1/2 आता तो आंसर आता अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही फेमस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, assuming that this is the question number 9, now
ट्राई टू सोल्व इट। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये सोल्व किए होंगे, सही होंगे तो वेरी गुड, नो डाउट। और आज मैं आपको एक जिसे कह सकते हैं कि असाइनमेंट सेशन भी रिलीज कर रहा हूँ, आपको सोल्व करना है। बेहतरीन जिसे कह सकते हैं कि क्वेश्चंस होंगे उतना सोल्व करके भी सबमिट करवा दो। नेक्स्ट नंबर, assuming that the mass m of the largest stone that can be moved by flowing river depends upon the velocity v of the water mass m depends upon velocity v of water, density rho of water, and the acceleration due to gravity, so gravitational acceleration g, then m is directly proportional to, देखो क्वेश्चन पूछने का अंदाज चेंज किया, m is directly proportional to, ऑप्शन आप देखोगे तो सभी आंसर स्पीड के फॉर्म में दिए, तो कोई बात नहीं, बिंदा शुरू करते। m is directly proportional to v raised to a, rho raised to b and g raised to c. Now by writing dimensional formula, so m1 l0 t0, अब वेलोसिटी का आप जानते हो l1 t minus 1 पावर a, डेंसिटी का आप जानते हो m1 l minus 3 मीटर kg पर मीटर क्यूब पावर b, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हियर ओनली m1, हियर l raised to a, t raised to minus a, here m raised to b and l raised to minus 3b, l raised to c, t raised to minus 2c। ओके, सबसे पहले m वाला इकट्ठा में से उठा लेते, m raised to b। अब चेक करो l, l और l, तो l का पावर क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ l, a minus 3b plus c। t वाले देखो दो टर्म, एक इधर है और एक इधर है, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ t raised to minus a minus 2c and here m raised to 1। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन, व्हाट इज द पावर ऑफ m हियर, हियर पावर ऑफ m इज b, तो b इज इक्वल टू 1, यू कैन सी b तो मिल गया 1। अपने को देखो दिलचस्पी a में है, ऐसे न्यूमेरिकल में टाइम बचाना है। कोई बोले a में क्यों, क्योंकि अपने को ऑप्शन देखो वेलोसिटी के फॉर्म में मास का रिलेशनशिप डेवलप करना है, तो कुछ भी करके a को फाइंड करो। तो पहले b मिल गया, अपन लोग इधर देखें l का पावर है a minus 3b plus c is equal to 0, क्योंकि इधर जो लोगों को पता ना चले देखो m raised to 1 l 0 and t 0, तो l का पावर के साथ l का पावर, t का पावर है minus a minus 2c is equal to 0। ओके, तो सबसे पहले अपने पास b मिल गया है। देखो जरा ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। b की वैल्यू पहले इधर रख दो, तो a minus 3b1 c is equal to 0, सो a minus 3 plus c 0, यानी कि a plus c हो जाएगा 3। देखो ये लोग बहुत ही सारे होते हैं, उसको पता है वेलोसिटी का पावर फाइंड करना है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी वेलोसिटी का पावर है a, झट से नहीं आएगा। देखा b फटाक से आ गया। अब ऐसा वो आपके पास हार्डवर्क करवाएंगे। अब a plus c 3 है और ये minus 2c है 0, तो अपन लोग क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल ले, तो a plus 2c 0 हो जाए, मतलब सिंपली a plus 2c is equal to 0 हो गया ना फ्रेंड्स। अब ये दोनों का अपन लोग जिससे कह सकते हैं कि क्या करते हैं ऐसा कि ताकि तो देखो इसमें टाइम बचाना हो तो क्या करना है, इधर c का कोफिशिएंट 2 है और इधर c का कोफिशिएंट 1 है, हमें इधर c को एलिमिनेट करना है। क्यों, क्योंकि हमारा टारगेट a फाइंड करना है, वेलोसिटी का पावर फाइंड करना है। तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2c एंड 3 2 जा 6। चेक करो, अब इसके नीचे इक्वेशन लिख देता हूँ, a प्लस 2c इज इक्वल टू 0, इधर 6 है। पता चला मैंने क्या किया, टाइम बचाने के लिए c को एलिमिनेट करना है, हमारा टारगेट a है, तो c फाइंड करे बाद में a फाइंड करे, उससे अच्छा है पहले c को हटा दे। c को हटाना हो तो इधर c का कोफिशिएंट 2 है, तो इधर भी c का कोफिशिएंट 2 लाना पड़े, तो मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसका अपन लोग सब्ट्रैक्शन लेंगे या एडिशन। देखो ये मैंने बताया, तो जो एलिमिनेट करना उसका पावर चेक करो, सॉरी पोलैरिटी या साइन। तो मैथमेटिकल साइन प्लस प्लस है, मतलब इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल साइन सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट साइन एडिशन। तो 2a माइनस a
2c तो कैंसिल हो गया, 2c माइनस 2c 0 और 6 माइनस 0 यानी 6, तो ये मिलेगा 6। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रेस टू ए, तो ए का पावर तो सॉरी ए का तो आंसर 6 है, तो v रेस टू 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा v रेस टू 6 यानी कि दिल्ली। देखो मस्त क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको भी जरा ध्यान रखना है। अगर यही क्वेश्चन पूछा होता इफ मास वेलोसिटी डेंसिटी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड हो तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो रेस टू समथिंग, तो क्या आता? तो रो का पावर क्या है b, तो b का पावर क्या है 1, तो अपन लोग ये आंसर डेंसिटी के लिए पूछते तो आंसर आता रो रेस टू 1, यू कैन सी। तो इस तरह b रेस टू पूछे तो c फाइंड करना है। तो ये आईएमपी क्वेश्चन, इसमें कुछ भी अलग अलग पूछ सकते हैं, आईएमपी ऐसे क्वेश्चन खास देखने हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, 10th number. All questions are very important, but now last one, 10th. So now we check it. What is the logic behind 10th? A force, area and density are considered as a fundamental quantities. देखो force, area and density D are considered fundamental. Then obtain the dimensional formula for Young's modulus. कोई ऐसे नाम आते हैं ना Young's मॉड्यूलस। मैंने कितनी बार बोला चैप्टर 2 में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फेंके जैसे आपने कभी सुना ही नहीं है, उसको सुन के देख के डरने का नहीं। ऐसी क्वांटिटी को बिंदास जिसे कह सकते हवा में उड़ाते चलो, मतलब हवा में उड़ाते चलो, मतलब ये नाम की जगह अगर आपका नाम रमेश हो तो रमेश लिख दो, हु केयर्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि अपना मेन टारगेट है यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला, बराबर। जैसे अपना एक स्टूडेंट है जिसे कह सकते हैं कि जयशील, ओके, या जयशील ठाकर, या जैसे आई नो आइडिया, आई थिंक जयशील ठाकर, तो अगर वो इधर जयशील रख के सोल्व करे तो क्या होगा? सो अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं जयशील इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स रेस टू ए, एरिया रेस टू बी एंड डेंसिटी रेस टू सी। क्या फर्क पड़े, वो जयशील के फॉर्म, आंसर तो उसको ये तीन क्वांटिटीज के फॉर्म में लाना है। तो यंग्स मॉड्यूलस के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड 11। तो इधर अपन लोग यंग्स मॉड्यूलस को डिनोट किया जाता है y, सो आई कैन राइट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f रेस टू a, एरिया रेस टू b एंड d रेस टू c। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई बोले सर यहाँ पे लोचे होंगे यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल लेस इट, डोंट वरी, ओके, क्योंकि सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला मैं बताता हूँ। यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये मैं डिराइव करके बताता हूँ। तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला है प्रेशर। यानी याद से याद रखने का डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉड्यूलस, इट इज सिंपली इक्वल टू प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं L1 L-1 T-1, सॉरी M1 L-1 T-2। ये कैसे है पता चला? प्रेशर का फॉर्मूला याद रखने का फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T-2, एरिया का L2, तो आंसर हो जाएगा -T-2, M1 L-1 T-2। देखो तो यंग्स मॉड्यूलस क्वांटिटी आपके लिए कोई टेंशन नहीं, आपको इतना याद रखने का यंग्स मॉड्यूलस दैट मींस सिंपली प्रेशर, ओके। तो ये सब कुछ आप पढ़ोगे, देखो ये फॉर्मूला आप इतनी बार अप्लाई करने वाले फीचर में कि आपके पल्ले पड़ने वाला है। मगर इस तरह सोचा जाए, काफी स्टूडेंट इधर टेंशन में जाते हैं सर ऐसी क्वांटिटीज, या आपके फ्रेंड्स या आपके दूसरे कोई सर ऐसी क्वांटिटीज फेंकते होंगे, हाँ ऐसा होता है ज्यादातर, मगर डरने कोई जरूरत नहीं है, वो भले फेंके, अपने को सिर्फ और सिर्फ देखते रहना है। क्योंकि ये इतनी तो इसमें तो ऐसी, तो मैं ऐसा एक आपको पेम्पलेट देने वाला हूँ जिसमें 300 क्वांटिटीज, तो क्या सभी 300 क्वांटिटीज अभी लर्न करेंगे? नो, अपने को 300 क्वांटिटीज की जरूरत नहीं है, 12, 25, 30 जो क्वांटिटीज हम लोग डील कर रहे हैं कंटिन्यूसली वही देखनी है। बाकी क्वांटिटीज को आप क्लास 12 खत्म होते होते सब डील कर लोगे, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिंदास आराम से चलो। सो ये हमने लिख दिया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T-2, इसका पावर है एरिया का मीटर स्क्वायर और डेंसिटी का है kg पर मीटर क्यूब। लो अब यहाँ से आपको तो जानते हो क्या करना है। अब तो ये एक मेथड आप कितनी बार अप्लाई करोगे तो मास्टरी आ जानी चाहिए।
बराबर है m रेस टू सी l रेस टू माइनस 3c। अब अपन लोग m वाले टर्म उठाए तो a प्लस सी हो जाएगा, l वाले टर्म उठाए तो al और l इधर से तो 2b माइनस 3c, और लास्ट में t वाला एक टर्म है माइनस 2c। तो अब क्या करेंगे, अब तो ये आपको पता ही होना चाहिए बाय कंपेयर पावर्स ऑफ m l t। तो शुरू करते हैं, इधर मैं अभी हटा देता हूँ, ऑलरेडी आपके पास ये सोर्स है और मैं एक टेम्पलेट देता हूँ, वो टेम्पलेट आप हर बार जिसे कह सकते क्वांटिटी सब देख के रिप्रेजेंट कर सकते हो, डोंट वरी। सो अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ m, इट इज a प्लस c इज इक्वल टू 1। देन हियर l का पावर a प्लस 2b माइनस 3c इज इक्वल टू -1, देखो ये रहा l, और t का पावर सीधा इधर लिख देता हूँ -2c इज इक्वल टू -2, तो c तो सीधा 1 मिल गया, c मिले 1 तो रखो इधर a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये भी मिल गया 0। अगर ये 0 हो तो 2b माइनस 3c माइनस 1 बचे, और उसमें भी c 1 है, सो 2b माइनस 3c, सो 2b माइनस 3 इज इक्वल टू -1, सो 2b इज इक्वल टू -1 प्लस 3, यानी 2b इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू 1। पता चला कि नहीं, सिंपल मैथमेटिक है। तो ए बी सी मिल गया, तो व्हाट इज द वी कैन से दैट फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉड्यूलस। तो अपन लोग इसमें वैल्यूज रखते, फोर्स का पावर आया a, तो a है ऑलरेडी 0, b का a का पावर है b है 1 और d है c, यानी वो भी 1। तो ये आंसर आना चाहिए। ओके, यू कैन सी दैट दिस इज योर आंसर f1। ओके, देयर इज f1 है -1 d1, यानी सी आंसर आना चाहिए। अपन लोग कुछ गलती कर रहे हैं, आई थिंक यस। जरा देखो, देयर इज वी कैन से द मिस्टेक अबाउट a की वैल्यू है, उसमें जरा देखते हैं, c ऑलरेडी 1, नो डाउट, a प्लस 2b, जस्ट अ मिनट, मैं डेटा एक बार अच्छी तरह देख लेता हूँ ताकि ओके ए प्लस सी इज इक्वल टू 1 इक्वेशन है एक ये। दूसरा, डेटा के मुताबिक देखा जाए, ओके, एंड yes, we can say that mistake particularly there you are. You can see here what is the mistake we have done. It is based on m, it is a plus, okay, a plus 2b minus 3c, वो भी सही होना चाहिए, okay, minus 2c is equal to -2। ओके फ्रेंड्स, तो यही आंसर एक्चुअली उसमें रॉन्ग है, ये आंसर परफेक्ट है। देयर इज वी कैन से दैट मिस्टेक अबाउट सॉल्यूशन, ये डेटा जो दिया उसमें इसके मुताबिक ये परफेक्ट है, डोंट वरी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर भी इसके मार्क्स के मुताबिक मैं रिजल्ट करेक्शन करके दूंगा। तो दिस ऑल क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व, एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। दैट मींस अब जो पार्ट है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों के मार्क्स इसमें जाते हैं। मगर उससे पहले आपको एक असाइनमेंट देता हूँ जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस के बेहतरीन 25 क्वेश्चंस है, वो सोल्व करने हैं A to Z। और एक असाइनमेंट के साथ एक पेम्पलेट है जिसमें सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूला है, यानी आप जहाँ पे भी अटको तो वो पेम्पलेट देख लेने का, उसमें से डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर लेने का। तो फ्रेंड्स, solve these 10 questions today and try to, we can say, that get mastery. Thanks.